Good afternoon, everyone. Today we are going to continue our class from where we have left yesterday, but still, I am going to give you a very brief recap of what we have discussed yet. Right? So, अभी तक हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करा है? हमने डिस्कस करा है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडिंग, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, and how much cardiovascular diseases are prevalent in our country. We have also discussed that what is the current expenditure of on healthcare in our country of in terms of percentage. It is 0.95 percentage in our country. Currently, our government spends 0.95% of GDP when it comes to healthcare, right? But national health policy talks differently. National health policy came in year 2017 and it talks about that the current expenditure rather should be increased to 2.5% of GDP, and they have listed another goals as well as strategies to alleviate people out of the misery. But let's discuss about National Digital Health Mission first. It was launched on 74th Independence Day by the Prime Minister from Red Fort, right? And what was the major areas? There are four things which you have to understand with respect to National Digital Health Mission. That is digital health ecosystem. It means there will be health records of a particular patient. Suppose you are a patient, right, and you go to the public hospital, you will be given a unique health ID. You will be given a unique health ID. What will happen with that? The person will enter the health ID and he will try to harvest all the records जो भी आपके, जैसे suppose what are the prescriptions, what are the diseases you have been diagnosed with, for what time you are visiting the hospital, what is your age, what is your blood group, what is your emergency number, what is your mobile number, सब लिखा होगा उस पर, राइट? तो उससे क्या होगा कि पहले मतलब ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है कि आप एक डॉक्टर ने ये दवाई लिख दी, किसी डॉक्टर ने वो दवाई लिख दी, सो देर विल बी नो मिक्सअप इन दिस. What will happen here? There will be an ecosystem, a digital ecosystem. Good afternoon. And there will be DigiDoctor as well. With the help of the DigiDoctor, you will be able to facilitate the service of telemedicine. Right? It is telemedicine. It means you will talk to the doctor on mobile phone or Zoom or whatsoever, and the doctor will prescribe you medicine from their location itself. Then there is e-pharmacy as well. It means you can order the medicines from the online store, right? We have understood that the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which comes under Ayushman Bharat scheme. Sorry, Ayushman Bharat. It is a program, umbrella program. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, that is National Health Protection Scheme. इसमें क्या है? It will be given 5 lakh insurance, no bar on family. We have discussed about it, right? It is implemented by National Health Authority. National Health Authority is an entity. Same authority is also implementing National Health Mission. नेशनल हेल्थ मिशन भी जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ही इंप्लीमेंट करा जा रहा है. अगर कोई भी डाउट हो तो देन एंड देयर ओनली आस्क. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो मैं बाद में पूछूंगा, ऐसे मत करना. आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो डाउट है वहीं का वहीं पर ही पूछ लें.
डीजी डॉक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि ये डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं ये डॉक्टर्स को दिए जाएंगे फॉर फ्री, विच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस. इट विल बी voluntary for the hospitals and doctors to provide details for the apps. ठीक है. हेल्थ आईडी के बारे में भी बात हो गई. एवरी पर्सन विल बी गिवन अ यूनिक हेल्थ आईडी ऑन विच देयर विल बी हेल्थ रिकॉर्ड्स एज वेल. राइट, चलो आगे चलते हैं फिर. अब है हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी. द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ on healthcare is 0.95%. National health policy was brought in year 2017. इसका जो ड्राफ्ट है वो 2015 में आया था. जो ड्राफ्ट है वो कहता था कि हेल्थ जो है वो जस्टिसिएबल राइट है. हेल्थ इज अ जस्टिसिएबल राइट, ये ड्राफ्ट कहता था. राइट, बट ड्राफ्ट क्या होता है? रफ वर्जन होता है. बट जब सच में पॉलिसी आई वेयर जस्टिस हेल्थ वॉज नॉट अ जस्टिसिएबल राइट, मतलब असली पॉलिसी में हेल्थ वॉज नॉट ब्रॉट एज अ जस्टिसिएबल राइट, वहाँ पर उसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं करा हुआ है. साथ ही में दे आर टॉकिंग अबाउट जेरियाट्रिक हेल्थ, ये एल्डरली से रिलेटेड है नाउ, और रिहैबिलिटेटिव केयर सर्विसेज और पैलिएटिव केयर, ये असिस्टेंस का होता है यहाँ पे. ठीक है. नेशनल हेल्थ पॉलिसी एडवोकेट्स दैट आवर हेल्थ एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज टू 2.5% ऑफ GDP. I am saying repeatedly because public health system in context of pandemic has been seen in the news repeatedly. Also, 15th Finance Commission recommended that the country should achieve this target of spending 2.5% of GDP by year 2024-25. 15th Finance Commission also talked about public-private partnership when it comes to healthcare. So that is what we have already seen, in Jan Arogya Yojana. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, there is a flexibility that you can change your hospital if you are in another state. Suppose I have registered myself in the state of Bihar, but since I am a migrant worker, I am going to Uttar Pradesh for work. Now, whatever the hospitals which are impaneled under Jan Arogya Yojana, be it private or public, I can take the services, secondary or tertiary services from the private as well as public hospital. They are also talking about 3-dimensional integration of IU system encompassing cross referrals, co-location and integrative practices. Right? तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? IU system समझती हो ना, ये आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, ये सब समझ रहे हो? आयुर्वेद भी है. हेल्थ एक्सपेंडिचर को 25 तक हमें 2.5% तक करना है, पर ये 25 तक है. ये चीज़ ध्यान रखना. यूपीएससी इसे 2020 कर देगी क्योंकि पैंडेमिक 2020 में आया था. टारगेट क्या है इसका टारगेट ये है, वी हैव टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 65 to 70. ऑलरेडी वी आर नियर दिस. जब व्हेन द कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट, the average life of a man in country was 32. Now it is 68. To reduce mortality of children under 5 to 23. Right? ये उसमें कितनी है? मध्य प्रदेश में 63, केरला में कितनी है? 7, तमिलनाडु में कितनी है? 23. Now what we have to do to allocate मेजर प्रपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज टू प्राइमरी केयर. प्राइमरी केयर का मतलब समझते हो ना, वेयर यू विल गो टू फर्स्ट, सबसे पहले जाओगे आप, वेयर यू विल बी गोइंग फर्स्ट फॉर व्हाट? डिटेक्टिंग डिजीज. नेशनल हेल्थ मिशन वांट्स टू टर्न दिस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इनटू हेल्थ
and wellness center. National Health Mission wants to turn these primary healthcare center into health and wellness center. The National Digital Health Mission does not recognize health as a justiciable right, but पहले ड्राफ्ट में बोला गया था, राइट। प्रॉब्लम बस यही है कि जैसे ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, तो इसको जो लेकर है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर इशू है, पर ये मेंस के लिए है, इस बात को ध्यान रखना। ये मेंस एनालिसिस के लिए आपका ज़्यादा जो है वो पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ खास जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब है व्हाट इज नेशनल हेल्थ स्टैक, यहीं पर ही हमने क्लास खत्म करी थी, थोड़ा सा रिकैप दिया है। अनवेल्ड बाय द नीति आयोग, सबसे पहली बात 2019 में क्वेश्चन आया था कि अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्टार्ट करा गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, नीति आयोग, आंसर वाज नीति आयोग, तो ध्यान रखना। और उसके बाद 2020 का जो यूपीपीसीएस का स्टेट सर्विस है, जो यूपीपीसीएस, उसमें फिर से पूछा गया कि अटल इनोवेशन कौन लेकर आया है, आंसर वाज नीति आयोग। ऐसा तो है नहीं एक साल में पलट जाएगा। नेशनल हेल्थ स्टैक इज ऑल्सो अनवेल्ड बाय नीति आयोग। It is digital infrastructure built with the aim of making the health insurance system more transparent and robust. थीम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्या करेगा ये, इसके 5 यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री, इसका मतलब क्या है कि इट इज द सिंगल सोर्स फॉर हेल्थ डेटा फॉर द नेशन। बट हमेशा इस चीज को लेकर यही आपको समझना है, आप एनालिसिस करने की कोशिश करो, ये डेटा बहुत कलेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा आरोग्य सेतु ऐप में भी एवरीवन इज कलेक्टिंग डेटा। वी डोंट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन आवर कंट्री येट, irrespective of the fact that the privacy has been pronounced as fundamental right under part 3 under article 21 of the Indian Constitution, and there has been a committee also called B N Shri Krishna committee which was constituted by the central government in order to draft a law regarding data protection, but still the law has not been brought upon, but still data is collected at a very fast speed. What is now electronic national health registry? Everything will be digitized. Coverage and claims platform, it means if you want to claim for your insurance, then you can also do from national health stack, allow for the horizontal as well as vertical expansion of schemes, जैसे कि आयुष्मान स्कीम है या जन आरोग्य योजना है, इसको आप जय भी बोल सकते हो, जय, फेडरेटेड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, that would serve the twin purpose of access of your own health data by patients and the availability of health for medical research. It means your data will also be used for medical research. National Health Analytics Platform, इसमें क्या है, you will be combining information that how much people are suffering from what particular disease. तो जैसे समझ आया कि हमें 100 लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करी, एंड इट टर्न्स आउट दैट 80% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी जहां पर हम डायबिटीज को कम कर सके, राइट। अदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इतना कुछ खास यहाँ पर है नहीं, आगे चलते हैं। व्हाट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, इसी के ही बाद जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर आया गया है, राइट। It is the architectural document for implementation of national health stack, यानी कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है या जो हेल्थ स्टैक है वो इसी ब्लूप्रिंट की वजह से बना है। पहले ब्लूप्रिंट होता ना, लाइक एक रफ कागज है कि हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, राइट, कि हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर पॉलिसी। नेशनल हेल्थ स्टैक जो है वो यहीं से आया है। इसका मेन विजन क्या है, टू क्रिएट अ हेल्थ डिजिटल इकोसिस्टम। बाकी इतना कुछ वो नहीं है कि आपको पढ़ना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फीचर्स वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि यूनिक हेल्थ आईडी, प्राइवेसी एंड कंसेंट मैनेजमेंट।
अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हेल्थ सेक्टर डेटा, IMR, MMR, हंगर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब रिसेंटली ये 2020 की रैंक बता रहा हूँ, 2020 की, 2019 की रैंक अलग आई थी। 2019 में इंडिया की रैंक अराउंड 104 थी आउट ऑफ 128 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2020 में इंडिया की रैंक 94 है आउट ऑफ 107, and this time we are even behind countries like बांग्लादेश, नेपाल as well as पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी अगर आप रैंक देखोगे इज 88 और इंडिया की है यहां पर 97। सो पाकिस्तान जो हमसे भी एक गरीब मुल्क है, उसकी भी रैंक यहाँ पर हमसे अच्छी है। इट मीन्स पाकिस्तान में ज़्यादा लोग हैं जो खाना पी के आराम से रात को सो रहे हैं। इंडिया में लोग आज भी, पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप और दे आर नॉट गोइंग टू स्लीप विद देयर बेली फुल। सो इंडिया फीचर्स बिहाइंड नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इंडिया इज ओनली अहेड ऑफ अफगानिस्तान। And we all know that Afghanistan is a war-torn country। वहाँ पे तालिबान ने 2001 से हम देख रहे हैं कि तमाशा मचा रखा है, लेकिन ऐसी कंट्री से हम पीछे हैं जहाँ पर 15-20 साल से सिविल वॉर चल रहा है। इंडिया में कोई सिविल वॉर चल रहा है नहीं। श्रीलंका को देखो आप, श्रीलंका इज ऑल्सो अहेड ऑफ अस, और श्रीलंका में 1990 से हम देख रहे हैं कि 1985 या 1987 से सिविल वॉर चल रहा है, और ईयर 2009 में वहाँ पर सिविल वॉर खत्म हुआ था श्रीलंका में। स्टिल श्रीलंका इज अहेड ऑफ अस। तो ऐसा क्यों है कि वो काफ़ी जो हैं वो कंट्रीज हमसे आगे हैं? क्योंकि इन इंडिया वी आर सीइंग जो ये हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट इज टर्निंग आउट टू बी इनइफेक्टिव, और वी कैन से कि इट इज फेलिंग। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग कि हम खाली 107 में से हमारी 94th रैंक आई है यहाँ पे। 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड का मतलब क्या है? दैट यू आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। जहां तक मुझे पता है कि आज आपका पॉलिटी का टेस्ट हुआ होगा, तो अपने डाउट्स जो भी हैं वो प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि अगले हफ्ते जो है हमारा पॉलिटी का भी डिस्कशन होगा। उसके बाद से जो है आई विल बी मेकिंग टेस्ट पेपर फॉर यू। आई विल बी पर्सनली क्राफ्टिंग द पेपर एंड द डिफिकल्टी फॉर द पेपर विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नाउ। जो आपका पूरा टेस्ट शेड्यूल है वो पूरा चेंज होने वाला है अब, बिकॉज नाउ आई विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ इट। कि जो कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट हैं वो आपके बढ़ा दिए जाएंगे, एंड देयर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट ऑफ CSAT एज वेल, राइट। चलो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी तो बता दी मैंने आपको। जतिन सर विल बी ऑल्सो अनाउंसिंग यू द सेम थिंग इन हिज करंट अफेयर्स बैच। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट। तो कौन इसको लेकर आता है? पहले इसे लेकर आता था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPRI, ये फिलीपींस में है। अब इसे लेकर आने लग गए हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एज वेल एज वर्ल्ड हंगर लाइफ। ये 2019 से चेंज हुआ है। पहले इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर लेकर आता था, अब इसे हम देख रहे हैं वर्ल्ड हंगर लेकर आ रहा है। डेटा फ्रॉम 1991 through 14 for Bangladesh, India, Nepal, Pakistan showed that stunting is concentrated among children from households facing multiple form of deprivation. It means people who are poor are generally stunted. इसका मतलब यहाँ पर ये है, including because they don't have money to buy food. मैंने आपको ये भी समझाया था पॉवर्टी की क्लास में, there is a term called poverty line basket. आई होप आपको पता होगा कि पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है और पॉवर्टी लाइन बास्केट किस कमीशन ने इस टर्म को अनाउंस करा था। मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी। इन मेनी कंट्रीज द सिचुएशन इज इंप्रूविंग बट अदर इट इज वर्सनिंग। फॉर 46 कंट्रीज इट इज मॉडरेट। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। एसोसिएटेड चैलेंज विद द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। ये भी चीज़ जो है वो मैं आपके साथ पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। दैट इन इंडिया देर इज अ पब्लिक नोशन दैट पब्लिक हेल्थ सिस्टम और द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट इफेक्टिव और एफिशिएंट, बट दिस पैंडेमिक हैज ब्रॉट दिस
brought a very a big shadow light on the health system that contrary to the public notion, they turned out to be very efficient as well as effective, as the private hospitals are 70% when we are talking about the health infrastructure in our country, but still they are pushing the patients into the public health system, यानी कि जो government hospitals हैं. Now this public health system, their scope is very limited as they serve only 15% of the comorbidities for the people which they are seeking care. It means अगर लोगों को 100 बीमारियां हैं तो सरकारी अस्पताल सिर्फ 15 बीमारी का ही इलाज दे रहा है. इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने बहुत लोगों को कोविड से भी बचाया है. So it is only 15% of morbidities for which people seek care. Inadequate funding, ये सब मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ. सो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है. इसको एक बार मैप को ज़रूर आप अपने पास देख लेना कि किस तरीके से हमारी कंट्री का हेल्थ सिस्टम है. कोई भी आपको ऐसे जो है वो नहीं समझाएगा. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट ऑल दीज चार्ट. प्लीज़ इसको ज़रूर देख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में स्टेट कैसे है, रूरल, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी, सब सेंटर और आशा एक्टिविस्ट. इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना. प्रीलिम्स में तो मुश्किल ही आएगा ऐसा सवाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब ये है इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क. इसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पर? टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन. ये यहाँ पर ये बताएंगे कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कितनी दूर है आपके पास अक्रॉस द कंट्री, किसके द्वारा? है नेशनल हेल्थ मिशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर के द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है. दिस प्रोवाइड्स रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको ये बताएगा कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कितना वैक्सीन का स्टॉक है, कितने टेम्परेचर पे वो स्टोर करी जा रही है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी इन ई वैक्सीन नेटवर्क. ये इंटेलिजेंस नेटवर्क है. इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी बता रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर है. ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं, राइट. अभी हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं? 23,507. इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी बता रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर है. फिर कल को मुझे आप बोलोगे कि आपने बताया नहीं, तो इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग. चलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. तो ये बस एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो अगर डाउट है तो. नहीं है तो ये भी लिख दो कि आई शुड कंटिन्यू. फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपने आज की क्लास के टॉपिक को. So shall we continue or shall we wait? Okay, let's continue then. Then most of the students are saying ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर. So scheduled tribes in India, this is particular vulnerable tribe, that is PVTGs, that is particular vulnerable tribal groups. तो इनको भी देखेंगे कि आज ये PVTGs क्या है, और साथ ही में मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखूंगा कि 2018 एज वेल एज 19 में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आया है स्केड्यूल्ड ट्राइब का प्रीलिम्स में, राइट. 2020 में नहीं आया, पर संभावना है कि 21 में भी आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और हर साल मेंस में भी क्वेश्चन आता है, बट जो आज हमारा एनालिसिस रहेगा वो प्रीलिम्स तक का ही रहेगा. यहाँ पर आगे चलते हैं.
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये स्केड्यूल्ड ट्राइब की हिस्ट्री क्या है। आपने हमेशा से सुना होगा कि ये जो 5th स्केड्यूल एरियाज हैं या 6 स्केड्यूल एरियाज हैं, ये आते हैं बंगाल रेगुलेशन एक्ट से। लेकिन उससे पहले भी एक एक्ट पास हुआ है, दैट इज रेगुलेशन 13 ऑफ 1833। आपने हमेशा से सुना होगा बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873, लेकिन इससे पहले भी एक एक्ट था, वो 1833 में पास हुआ था, एंड इट क्रिएटेड नॉन रेगुलेशन provinces. Why these provinces was created? Because a lot of tribal rebellions had taken place in the era of British colonialism. जब Britishers were trying to expand their colonies, tribal rebellions were taking place in the 19th century, and at that period only in 1833 regulation was passed for creating non-regulation provinces, and they were to be governed by special rules for civils as well as criminal justice, right? So in Singhbhum area, then in the northeast, यहाँ पर हमने देखा 1873 में रेगुलेशन आया। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, आज अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात करते हो कि नॉर्थ ईस्ट में 5th स्केड्यूल एरिया है, 6th स्केड्यूल एरिया है, वो इसलिए है क्योंकि बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873 आया था, लेकिन 1833 एक्ट भी आया हुआ है सिंघभम एरिया के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ एज पर द अब हु इज गोइंग टू गवर्न दीज एरियाज। 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट था, ठीक है, तो जो ये एक्ट था इसमें हम देख रहे हैं कि इट वॉज द गवर्नर जनरल हु हैड द पावर फॉर फॉर एक्टिंग विद रिगार्ड टू दीज एरियाज। जो भी स्केड्यूल्ड एरियाज है, गवर्नर जनरल हैड द पावर, हैड द एक्सक्लूसिव पावर, पर वो ही पावर जो है वो डेलीगेट करी गई टू गवर्नर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। आप सब लोगों को पता है कि 1935 में देवर प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल, और हर स्टेट में एक गवर्नर हुआ करता था। पहले गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो स्केड्यूल एरियाज को लेकर क्या लॉ बना सकता है। उसके बाद वही पावर एक स्टेट के गवर्नर को दी गई। आज यही पावर जो है वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के पास है। हमारे प्रेसिडेंट के पास है स्केड्यूल ट्राइब्स को लेकर। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने इन ट्राइब्स को स्केड्यूल ट्राइब्स क्लासिफाई करा, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 ये बताता है दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग स्केड्यूल ट्राइब्स इन आवर कंट्री। Please mark my word here, a question could be asked in your UPSC prelims that the definition of the scheduled tribes is defined in our constitution. This will be a wrong statement because there is no definition of scheduled tribes in our country. Article 342 clause 2 only talks about the process. It only talks about the process of defining the scheduled tribe. Till now there is no one concrete definition with regard to scheduled tribes living in our country. So areas where scheduled tribes are numerically dominant, two distinct administrative arrangements have been provided. It means अगर आप देखोगे कि कहीं पर क्या है, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स आर न्यूमेरिकली डोमिनेंट, जहां पर वो ज्यादा मात्रा में है, उनके लिए हमारे संविधान में 2 अरेंजमेंट लेकर आए गए हैं, दैट इज 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल। ये जो 6th स्केड्यूल है ना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी था किसी और फॉर्म में। इसकी मेन पर्पस जो है वो है आइसोलेशन और इंटीग्रेशन से लेकर, राइट। अगर किसी के पास भी यहाँ पर सोशियोलॉजी है या थोड़ा सा भी सोशियोलॉजी पढ़ा है या स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है, हमेशा से हमारे ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर एक डिलेमा रहा है। डिलेमा इज दैट shall these tribal people should be integrated in our society, should they be integrated or should they be isolated? See, if they will be isolated, then they will never be able to learn our culture, our rituals, our tradition, right? So if they are isolated,
and if they are integrated in our if they are integrated into the mainstream society, the critics say that then we will lose the diversity of our country, since they have a very unique culture, identity, ethnicism. ठीक है, but then they will be able to uplift or alleviate themselves from the circumstances around which they are living, because people like these tribes do not even have a normal immunity which a person possesses in a city, right? So even if you will sneeze in front of them, they will get sick, because they have this habit of living in an isolation. आज की तारीख में तो आज लोगों को कोविड भी हो रखा है, अगर वो किसी के सामने छींक दे उनको फर्क नहीं पड़ता, राइट? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड. बट अगर आप यहाँ पर इनके सामने छींक दोगे, he might die only because they don't even have a strand of immunity, because they have this habit of living in an isolation. So there are two debates regarding scheduled tribes, which is related to isolation as well as integration. So there are lot of opinions upon them कि क्या इन्हें अलग करके रखना चाहिए या इन्हें समाज के साथ जोड़ देना चाहिए, right? Now, fifth, schedule areas under the constitution which at the president may be ordered declared to be scheduled areas. It means who can declare any area as a scheduled area? It is the president. At present, in how many states there are scheduled areas? That is 10 states. Please mark my word, इंडिया में हिमालयन स्टेट्स भी 10 हैं. हिमालयन स्टेट्स भी इंडिया में 10 हैं. 7 नॉर्थ ईस्टर्न है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर. अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा, मैं पहले की बात बता रहा हूँ. तो ये हिमालयन को इससे यहाँ पर कंपेयर मत करना, क्योंकि इसमें सेंट्रल इंडिया को लेकर भी काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे कि झारखंड, जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारी स्टेट्स यहाँ पर बताई गई हैं. बिहार नहीं है. चलो, द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल हैव सीन फर्दर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव री-इन्फोर्समेंट. अब ये पीसा एक्ट जो है ना, पंचायत एक्सटेंशन जो एक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज, ये किस कमीशन ने जो है वो रेकमेंड करा था? इट वाज भूरिया कमीशन. भूरिया कमीशन 1960. It was constituted in year 1960 and they recommended for PISA Act. आगे पढ़ेंगे हम भूरिया कमीशन के बारे में भी. Yes, very good सुशील. Elvin Verrier, not Barrier, it is Elvin Verrier. He was a British anthropologist. 6 schedule areas के बारे में बात करते हैं हम. 6 schedule areas क्या चीज है यहाँ पर? चलो, 6 schedule areas are those areas which were excluded until the Government of India Act 1935 in the erstwhile Assam and other tribal dominant areas. अब इसमें क्या है कि इन स्टेट्स को हमने कभी भी इंक्लूड ही नहीं करा कि यहाँ पर कोई ट्राइब्स रहती हैं. तो इन ऑर्डर टू गिव देम ऑटोनॉमी 6 schedule को लेकर आया गया, and they have been given special provision under part 21 of the constitution. इस एक्ट को भी पास करा गया called removal of area restrictions, which removed area restrictions on the recognition of scheduled tribes, right? तो ये इतना important नहीं है, but आपको ये भी पता होना चाहिए कि who can make law or who are empowered to create tribal autonomous regions here. ये 6 schedule के अंडर बनाई जाती हैं autonomous council. जैसे आपने सुना होगा दीमा हसाओ autonomous council, ये असम में है, राइट?
तो ये 6 शेड्यूल के थ्रू बनाई जा रही है। ये क्या है कि आपको एक ऑटोनॉमी दी जा रही है, दैट यू कैन गवर्न योरसेल्फ। आप ये भी देखोगे कि आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं और उसमें 3/4 जो है वो स्केड्यूल ट्राइब ही होने चाहिए कंपल्सरीली। उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अब अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है दैट हु इज एम्पावर्ड टू क्रिएट ऑटोनॉमस काउंसिल, इट इज बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। ज्यादातर लोगों का गोला जो घूमेगा वो सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ घूमेगा, तो वो गोला आपका माइनस कर देगा 0.66 मार्क्स। Parliament and state legislature are also empowered to create tribal autonomous council out of 5th as well as 6th schedule। आगे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कारगिल ऑटोनॉमस काउंसिल, दार्जिलिंग ऑटोनॉमस काउंसिल, ले ऑटोनॉमस काउंसिल, ये क्या कर रहे हैं? दीज पीपल आर गवर्निंग देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल ट्राइब ओनली। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को एक बार पढ़ लेना, आज भी पढ़ेंगे हम। अब 1935 के एक्ट में सबसे पहली बार इनको स्केड्यूल ट्राइब नहीं बोला गया था, बल्कि बैकवर्ड ट्राइब्स बोला गया था। इनको हम ये जैसे ये बोलते हैं ना कि शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, इनको एक शेड्यूल में जो है वो मेंशन करा गया था। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, बिकॉज इनको एक शेड्यूल में इनके नाम इस लिस्ट में डाला गया था। तो इसको हम बोलने लगे कि दीज ट्राइब्स आर स्केड्यूल्ड, दीज कास्ट आर स्केड्यूल्ड, राइट। अब आपको और क्या समझना है यहाँ पर, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड हेंस द डेफिनेशन कंटेन्ड इन द 1931 सेंसस वाज यूज्ड इनिशियल आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट अभी हमारी कंट्री में there is no concrete definition for recognition of scheduled tribe, right? So there is no definition here, but article 366 clause 2 of the constitution only provides the process how to define scheduled tribes। ये लिखा हुआ है, what is scheduled tribe वो नहीं पता। Scheduled tribes means such tribes or tribal communities or parts within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342। ये वो ट्राइब्स हैं या वो ट्राइबल ग्रुप्स में से कुछ लोग हैं जो आर्टिकल 342 जो है वो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को मानता है। बस ये लिखा हुआ है, कितना कंफ्यूजिंग है ना। तो आपको पता होना चाहिए द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन। क्वेश्चन यही पूछेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, और यहीं पर ही आपको क्लियर होना है। आगे चलते हैं। अब है थोड़ी फैक्चुअल बात, इसको आप ध्यान से सुन लेना। द प्रेसिडेंट, ये क्लॉज 2 हमने देख लिया, 342 का जो क्लॉज 2 है वो टॉक करता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, अब 342 क्या बोल रहा है, इट इज द प्रेसिडेंट। यहां पर कैसे कंफ्यूज करा जाएगा आपको, पार्लियामेंट यूज करके। द पार्लियामेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी और एनी स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर, गवर्नर्स कंसल्टेशन इज देयर by a public notification specify the tribe or tribal communities as scheduled tribe। It means president has to consult with the governor, and who will enter scheduled tribe into list, that is parliament, but who will notify, it is president। Now how many tribes have been notified yet? सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पर हैं, ओडिशा में। ये स्केड्यूल्ड ट्राइब हैं, ये ध्यान रखना। स्केड्यूल्ड ट्राइब और पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में बहुत ज्यादा फर्क है। यहां पर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसटीज एज वेल एज पीवीटीजीज, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नो ट्राइब इज फाउंड और आइडेंटिफाइड इन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
अब आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पावर्टी कमीशंस को लेकर ये बताया था कि सबसे पहली कमीशन जो है हमारी कंट्री में पावर्टी को लेकर बनी थी दादा भाई नरोजी को लेकर, हु ब्रॉट द फर्स्ट एस्टिमेशन मेथड ऑफ पावर्टी। अब यहाँ पर हम काका कालेकर कमीशन के बारे में बात करते हैं, जो स्केड्यूल कास्ट के लिए भी कमीशन सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी अंडर आर्टिकल 340 एज वेल एज 342। नाउ आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग यहाँ पर काका कालेकर कमीशन को बनाया गया, और काका कालेकर कमीशन ने ये बोला दैट द पीपल कमिंग और स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, इट मीन्स इनका कोई धर्म नहीं होता। एल्विन कमिटी को बनाया गया 1959 में। इन्होंने क्या बोला कि वी हैव टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ मल्टीपर्पज ब्लॉक्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये यूएन देवार कमीशन। दिस कमीशन टॉक्ड अबाउट पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसी कमीशन की वजह से हमारी एक कैटेगरी आई कॉल्ड पीवीटीजीज। हु आर पीवीटीजीज? पीवीटीजीज आर दोज पीपल who are still dependent on pre-agriculture system, means they do not sow crops, they are still hunters and gatherers। याद है एंशियंट सोसाइटी से पहले भी हमारे यहाँ पर हंटर और गैदरर हुआ करते थे। दे वेयर फर ऑफ एनिमल्स, ये पीवीटीजीज हैं। Now the Lokur committee, it was the set up to look into the criteria for defining scheduled tribes। Lokur committee ने फिर 5 यहाँ पर चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम scheduled tribe को यहाँ पर define कर सकते हैं, पर इतना important नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर scheduled tribe की कोई definition है ही नहीं। Yes, I will also tell that how ये जो administration वाली चीज़ें हैं ना, कि दीमा हसाओ क्या है, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल जो है, वो हम आखिरी में करेंगे, राइट। सब चीज एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, बट आई जस्ट वांट यू टू बी पेशेंट, राइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। फिर उसके बाद एक और कमिटी आई, दैट वाज शीलू ओ कमिटी। इन्होंने भी एल्विन कमिटी की तरह क्या बोला कि डेवलपमेंट देखना चाहिए, वेलफेयर देखना चाहिए। ये मैं कमिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी में आस्क यू क्वेश्चन विद रिगार्ड टू क्रोनोलॉजी कि कौन सी कमीशन जो है वो सबसे पहले आई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि काका कालेकर कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन with respect to scheduled tribe, and they were the one who said, this commission said that there is a possibility the person in a scheduled tribe does not have any religion। then Elvin committee आई, फिर आउलू committee आई, फिर ट्राइबल सब प्लान आया 1970s में, फिर भूरिया कमेटी आई। एंड भूरिया कमेटी ने ही यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर हमें पीसा एक्ट को लेकर आना चाहिए कि पंचायत जो क्या करेंगे हम, एक्सटेंशन टू द स्केड्यूल्ड एरियाज। इन्होंने क्या बोला, जहां पर भी आपको ग्रीन, मेरी स्लाइड में स्पेशली जहां पर भी आपको ग्रीन चीजें दिख रही है ना, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। तो इन्होंने क्या बोला, दे फोकस्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम 5th स्केड्यूल टू ट्राइबल लैंड एज वेल एज फॉरेस्ट। नाउ अब लास्ट कमिटी कौन सी बैठी हुई है यहाँ पे, दैट इज बंदोपाध्याय कमिटी। और फिर मुंगेर कमेटी इससे पहले बैठी हुई थी। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नाम देख लो आप कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ट्राइब जो है वो कहां पर है, सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कहां पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पर हैं, ओडिशा में। 62 ट्राइब्स हमें ओडिशा में देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन का है। देखो ट्राइब्स का मिलना अलग बात है। देखो एक चीज बताता हूं, ठीक है। आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ट्राइब कॉल्ड ए। दिल्ली में आपको BCDE सब मिल जाएगा दिल्ली में, राइट। लेकिन दिल्ली में क्या उतनी पॉपुलेशन है जितनी यूपी में है?
यूपी में पॉपुलेशन है 20 करोड़, दिल्ली में पॉपुलेशन है 2 करोड़, लेकिन दिल्ली में आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी देखने को। सेम चीज़ आपको ओडिशा में देखने को मिल रहा है कि ओडिशा में 62 ट्राइब्स रहती हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन नंबर न्यूमेरिकल वाइज कम हो। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकली सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स कहाँ पर हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो और ये भी जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्डरली की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू सेंसस इज 8.6%। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देखोगे कि 2011 में हमारी कंट्री में भी ट्राइबल की पॉपुलेशन 8.6 है। तो मैं सोशल इश्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी तक आपको 2-4 टॉपिक ही अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। उसमें से एक एल्डरली था जो हमारी सबसे पहली क्लास थी, ये हमारी 5वीं क्लास है आज, राइट। तो एल्डरली पॉपुलेशन में क्या बताया गया था कि एल्डरली पॉपुलेशन हमारी कंट्री में 8.6 है और ट्राइबल पॉपुलेशन भी 8.6 है। कितनी है? 10,42,81,34 लोग हैं ये। जब स्केड्यूल्ड ट्राइब हमारी कंट्री में सेंसस था 2011 का, तो 705 स्केड्यूल्ड ट्राइब हमारी कंट्री में नोटिफाई करी जा चुकी हैं। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि कितने रीजनल ग्रुपिंग है यहाँ पर। हिमालय में आपको 3 रीजनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय में आपका क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह। नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। मिडिल रीजन में आप ये देखोगे कि where more than 50% ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया लिव। सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिल रहा है? मिडल रीजन में, अगर हमने जोग्राफिकली देखें ब्रॉड। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो कहीं और निकलेंगे। वेस्टर्न रीजन में कहाँ पर हैं आपको? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, कर्नाटका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं। फिर आप देखोगे आइलैंड में, अंडमान और निकोबार में भी है, लक्षद्वीप में भी है, हर जगह आपको यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली आई गेस इन ईयर 2019 ऑल्सो अ पर्सन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स और आई थिंक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया was trying to get into a restricted island and he was shot down by an arrow of the scheduled tribe। ठीक है, आई गेस वो जोरावा ट्राइब थी या दैट वाज सेंटिनल ट्राइब। सेंटिनल ट्राइब शॉट हिम डाउन बाय एन एरो, और उनका ना वो एरो होता है ऐसे, और इस एरो के ऊपर उन्होंने पॉइजन लगाया होता है। चलो, अब क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग? इंडो यूरोपियन, ओवर 1% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। द्रविडियन फैमिली, जैसे ये टोडा आपने सुना होगा, टोडाज ऑफ नीलगिरी सुना होगा शायद आपने। गोंड के बारे में भी सुना होगा, खोंड के बारे में भी सुना होगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक एज वेल एज तिब्बतो बर्मन, ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बट आपको क्या समझना है, हमारी कंट्री में हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर? ट्राइबल में 80%। But ironically, those people who are illiterate have a very good sex ratio among scheduled tribe, 991 females to every 1000 males. It means they don't discriminate with regard to gender. Regarding the distribution, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कितनी पॉपुलेशन है? 14.7%। सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पर हैं? ओडिशा में। यही चीज़ आपको कैच कर लेगी। ये देखो, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, और ये ईस्टर्न इंडिया। यहीं पर ही आप पकड़े जाओगे। यूपीएससी इसी चीज़ को पकड़ती है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। और ओडिशा आप देखोगे दैट इज इन 3rd पोजीशन,
वैसे थर्ड पोजीशन पर है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ ट्राइब इट इज एट द फर्स्ट पोजीशन बिकॉज इट हैज 62 ट्राइब्स विच आर लिविंग इन ओडिशा. चलो आगे चलते हैं फिर. प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पर मेजॉरिटी आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे, अर्बन एरियाज में बहुत कम रहते हैं स्केड्यूल ट्राइब. रहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे ही ट्रैप हो जाओगे आप, क्योंकि योर माइंडसेट विल बी सेइंग that since they are tribal groups, what they will be doing in urban areas, they still exist in urban areas. Okay, this when it comes to numerical population, numerical का मतलब ये है कि 1 लाख लोग हैं जैसे, ठीक है, सपोज ये मान लेते हैं कि 1 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है. इन 1 लाख लोगों में से इनमें 50 कम्युनिटीज हैं. आप अगर देसी भाषा में बोलूं 50 जाति हैं, ठीक है, ये जात या 50 धर्म हैं. अगर हम धर्म के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं उड़ीसा में. उड़ीसा में 50 में से आपको 40 धर्म मिल जाएंगे. 40 धर्म के लोग उड़ीसा में रहते हैं, सपोज मान लिया. लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन धर्मों के हिसाब से कि कितने ज़्यादा हिंदू के लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में. 1 लाख में से यहाँ पर 15,000 लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं. तो हम अगर स्केड्यूल ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है स्केड्यूल ट्राइब की, अराउंड 10 लाख. उसमें से हमें 14% कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इट इज इन मध्य प्रदेश, राइट. अब इरेजर नहीं मिल रही है यहां से, 1 मिनट. इट इज इन मध्य प्रदेश. ये आपको बस ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा कहां है और सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पर हैं, ओडिशा में. यही आप कंफ्यूज हो गए, मैं ये बोल रहा हूं. I hope this topic is clear to you. Shall I continue? Right, and since we are talking about sex ratio as well, तो यहाँ पर people of scheduled tribe are considered as illiterate people because they have never studied Lakshmikant or democracy. But still we are seeing that the sex ratio is better than the urbanized as well as civilized population. It is 991 females in 1000 males in rural areas. यानी कि रूरल एरियाज में आप देख रहे हो कि जो इनका सेक्स रेशियो है वो बेहतर है. इंडिया में आप देखोगे हरियाणा में सेक्स रेशियो इज अराउंड 790 बिफोर 2014. इफ देयर आर 1000 मेल, हरियाणा में 2014 से पहले अगर आप देखोगे इट इज अराउंड 800 फीमेल्स. इट मीन्स व्हाट, क्रूड मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट, फीटल किलिंग, राइट. यही चीज आप देखोगे यहां पर. अब आगे चलते हैं. यहाँ पे सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, दैट इज 10%, और थर्ड नंबर पर ओडिशा है. सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पर है, ओडिशा में है. सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहां है, आपका मध्य प्रदेश में, 14.7%. ठीक है, अब आगे चलते हैं. रूरल एरियाज में आप देखोगे कि पॉपुलेशन स्केड्यूल ट्राइब की ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन स्केड्यूल ट्राइब की कम है.
अब आगे चलें, और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देयर इज नो ट्राइबल ग्रुप और ट्राइबल पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आपको बेवकूफ नहीं बनना है। यू डोंट हैव टू बी अ फूल, बी अ फूल, ठीक है, फ्लावर बनना है, फूल नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, पीवीटीजीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कौन है? सबसे पहले तो ये यूएन देवार, ये यूनाइटेड नेशन देवार नहीं है, ये इनका नाम है देवार का। यूएन देवार कमीशन 1960 में क्रिएट करी गई थी। इन्होंने बोला कि इवन जैसे हमने देखा है ना कि स्केड्यूल्ड कास्ट में एज वेल एज ओबीसी में हम देख रहे हैं कि देयर आर ओनली फ्यू कम्युनिटीज विच आर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, right? That is why Rohini Commission has been constituted by the central government in order to sub-categorization of backward classes. Last class में पढ़ा था हमने. Similarly, Devar Commission report said that even in the scheduled tribe, there are some tribal groups who are more backward in the category itself. There is widening inequality in the rate of development. It means some people are I'll say climbing up the social ladder faster than this group. ये देखो, ये ट्राइबल ग्रुप हैं दो, ये स्केड्यूल्ड ट्राइब है, दिस इज स्केड्यूल्ड ट्राइब। स्केड्यूल्ड ट्राइब का ये ग्रुप है, इनमें दो ग्रुप हैं। ये ग्रुप जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्रुप जो है वो पीछे रह गया, तो ये पीवीटीजीज हो गया, राइट? ये समझ लो बस आप। अब इन्होंने क्या बोला? दे आर हंटर्स एज वेल एज गैदरर्स, दे हैव अ प्री एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है? एग्रीकल्चर से पहले भी किस तरीके के लोग होते थे? जो बोज और स्पीयर से एनिमल की हंटिंग करते थे, उनका फर पहनते थे, उनके क्लॉस को इस्तेमाल करके अपने टूल्स बना लेते थे। ऑल्सो दे हैव जीरो एज वेल एज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जैसे आप टोडास देखोगे, टोडास ऑफ तमिलनाडु बहुत फेमस है। ये टोडास खाली 800 हैं पॉपुलेशन में। ये देखोगे आप सेंटिनलीज, सेंटिनलीज पहले एक समय पर 200 थे, अब बोला जाता है कि ये शायद 50 से 150 के बीच में है। मतलब इसके अलावा इनका कोई है ही नहीं, ये पूरी फैमिली है बस एक। पहले एक समय पर ये 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ पॉपुलेशन थी, बट जो ये सेंटिनलीज है इट इज अ पीवीटीजी, राइट? अब ये क्या बोला जा रहा है? दे हैव एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन कंपैरिजन टू द अदर ट्राइबल ग्रुप। यानी कि अगर इसे 1 2 3 आता है तो इसे ABCD भी नहीं आता। इसे पता है कि A फॉर एप्पल, तो इसे पता ही नहीं है कि A होता क्या है, वो A को आ बोलेगा। अब पीवीटीजीज वो ही है जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है, ये चीज ध्यान रख लेना। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वही हैं जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है। ऑल द ट्राइब्स इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज हैव नॉट बीन ग्रांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि हाँ, हमने पता है कि ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये पिछड़ा हुआ है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना ही बहुत बड़ी बात है। स्केड्यूल ट्राइब के अंडर जो है वो पीवीटीजीज हमें देखने को मिल रही है। अब क्या क्या है ये देखो, ये बिरजिया है बिहार में, सेंटिनलीज है, ग्रेट अंडमानीज है, ये सब वो हैं। ओंग बिरहोर है, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। असुर है ट्राइब का नाम, और ये बिहार में मिलेगी। मनकीड़िया ओडिशा में है। जरावा ये भी आपको अंडमान निकोबार या फिर आइलैंड में ही मिलेगी। चोला नाइकेन ये आपको केरला में मिलेगी। शॉम्पेन ये आपको अंडमान या निकोबार में मिलेगी। बिरहोर ओडिशा में मिलेगी। टोडास ऑफ नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में मिलेगी। ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली कोविड-19 जो है वो एक पीवीटीजी को भी हो गया। अब वो पीवीटीजी कौन सी है ये देखो, ग्रेट अंडमानीज। इस ग्रेट अंडमानीज आर वन ऑफ द 5 पीवीटीजीज दैट रिसाइड इन अंडमान। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉम्पेन इज द ओनली पीवीटीजी इन द रीजन विद मोंगोलॉइड फीचर। आई नो, I understand that today I am telling you a lot of information, but
You have to remember this no matter what, right? Because कभी कभार जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 3 स्टेटमेंट का पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट का पूछा जाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपको एक स्टेटमेंट का भी आंसर पता है ना, तो देयर आर चांसेस कि आप ए, बी और सी और डी में से ये 3 ऑप्शन कैंसिल कर दो, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस में से एक ही स्टेटमेंट से पूरा आप क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंडमान में कितनी ट्राइब्स रहती हैं? 5। और यहाँ पर शॉम्पेन भी रहती है, और शॉम्पेन ही एक ऐसी ट्राइब है जो क्या बोलती है, जिसके पास मोंगोलॉइड फीचर है। मोंगोलॉइड फीचर जो मंगोल के लोगों के हैं, ठीक है। आगे चले। पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रिमिटिव ट्राइब्स। प्रिमिटिव ट्राइब्स का मतलब यहाँ पर पीवीटीजीज है। दे हैव डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। अब हमारी कंट्री में 2011 के सेंसस कितनी ट्राइब्स हैं? 705। पीवीटीजीज हमारी कंट्री में कितनी हैं? 75। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब फॉरेस्ट सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री में कितना फॉरेस्ट है इस समय पे? 21%। और क्या टारगेट है हमारे फॉरेस्ट कवर का? इतना है टारगेट। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारा फॉरेस्ट जो है वो 21% है। प्रॉब्लम ये है कि ये फॉरेस्ट सर्वे जो है, इसी में ही ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है। 60% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज फाउंड इन ट्राइबल एरियाज। और प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी रीजन जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है वो मिनरल रिसोर्सेज रिच है, मिनरल रिच हैं। मतलब प्रॉब्लम ये है कि माइनिंग हो रही है, सो दे आर एक्सपोज टू पॉल्यूशन। 3 स्टेट विद सब्सटैंशियल ट्राइबल पॉपुलेशन, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कंसिडरेबल मिनरल रिजर्व। कोल 70% मिलेगा आपको, क्रोमाइट्स नियर 100%। प्रॉब्लम यही रहती है यहाँ पर कि जब मिनरल एक्सट्रैक्शन चलता है, इन ट्राइब्स को क्या कर दिया जाएगा? और ये तो पक्का है कि ये हमारी कंट्री में पक्का होगा, ये 100% है। पर क्या ये चीज होगी? इसके ऊपर सवाल है। डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, पर क्या रिहैबिलिटेशन होगा? आपको वापस से जगह दी जाएगी? आंसर इज नॉट श्योर। तो हमारी कंट्री में 33% फॉरेस्ट का टारगेट है, 21% हमारी कंट्री में है 2011 के सेंसस के हिसाब से। और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 4,11,881 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। मेरे वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है? Is there any disturbance in the voice? Please tell me so that मैं फिर माइक चेंज कर लूँगा। एनी डिस्टर्बेंस इन द वॉइस? जल्द नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आर्म्ड आफ्स्पा एक्ट के बारे में। वैसे ये है तो टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी का, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1956 गिव स्पेशल पावर टू आर्म्ड फोर्सेस, paramilitary forces, armed forces, who can shoot to kill on mere suspicion. So because if the area is declared as a disturbed area, अगर कोई भी एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है,
then armed forces have this special power, then they can shoot a person on mere suspicion कि this person might be belonging to left wing extremism. Left wing extremism समझते हो ना, जो हमारी कंट्री में रेड कॉरिडोर बना हुआ है, नक्सलवादी लोग. Rehabilitation, see, if you are rehabilitated to a isolated place, then the culture will not be destroyed, then the culture will not be integrated, right? If the government rehabilitates them, see, suppose I come to your place, right? I come to your place and say that I am going to build a dam over there. Then you will ask me that at least give me the same kind of place in which I am living. The government, I will say no, you have to find your place on your own. मुझे तो बस यहाँ पे डैम बनाना है, आप अपना कहीं और देख लो. How will you feel? This is the same which is happening with PVTGs as well as scheduled tribe. If they are not rehabilitated, then their culture will, of course, will be destroyed. And we have seen जो extra judicial killings, हमें एक term जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर famous है when it comes to these things. उस term का yes, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, I do agree with this. Yes, उस term का यहाँ पर नाम है सलवा जुदूम. इसके बारे में ज़रूर पढ़ना आप. ठीक है, खुद पढ़ लेना, ऐसा कुछ वो नहीं है. अब आते हैं हम फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन. फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल आर द टू अरेंजमेंट विद रिगार्ड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स. फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. एरियाज कैन बी डेजिग्नेटेड शेड्यूल एरियाज बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट with the consultation of governor. हमें ये बात पता चल गई. Part B talks about tribal advisory council. Tribal advisory council in each state having scheduled areas, right? The duty of the Tribal Advisory Council is to advise on matter pertaining to the welfare and the advancement of scheduled tribe. क्या काम है Tribal Advisory Council का? इसके बारे में जरूर पढ़ना है आपको. Tribal Advisory Council का क्या यहाँ पर कॉम्पोजिशन होता है, पता होना चाहिए आपको. नहीं पता तो पता करो. पीसा एक्ट पढ़ना है आपको. अगर हमारा आज जो ये टॉपिक है टाइम पे नहीं ख़त्म होता है, हमारी क्लास का टाइम जो है वो आई गेस 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. अगर ये हमारा टॉपिक आज नहीं पूरा होगा तो हम इस क्लास को वापस से कंटिन्यू करेंगे, वेयर आई विल बी टीचिंग यू पीसा एक्ट एज वेल. तो आपका फ़ायदा यही रहेगा कि अगर आप क्लास से पहले पढ़कर आओगे तो आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा, राइट? मैं तो बस आपको यही बोलूँगा. See, I am teaching a lot of students since 2018. When in 2018, I taught a plus course on Unacademy. I took a test series for them and I gave them 5 tests composed of 30 questions each. मतलब मैंने 150 क्वेश्चन पूछे थे उनसे. And out of these 150 question, and I am not going to lie to you because मेरे को आपको कोई चीज़ बेचनी नहीं है यहाँ पे. आप ऑलरेडी कोर्स खरीद चुके हो. ये 6 questions directly came out of these 150 questions. 6 questions directly came. One was related to FRBM Act. One was related to merchant discount rate. One was related to THAAD missile. ये मैं 2018 का प्रीलिम्स का बता रहा हूँ आपको. So what I am saying, if I am saying something to you, please understand कि ये चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं. पीसा एक्ट आप पढ़कर आएंगे पूरा.
हम नेक्स्ट क्लास में तो उसको डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स रेलेवेंस, बट इसको अगर आप पढ़ कर आओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलो, फिफ्थ स्केड्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया। Unlike the sixth schedule, where autonomous district council have been given significant legislative, judicial and executive power on several important matters, क्या समझ रहे हो? फिफ्थ स्केड्यूल बना रहा है यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और यहाँ पर सिक्स स्केड्यूल बना रहा है ऑटोनॉमस काउंसिल, राइट? क्या बना रहा है वो? ऑटोनॉमस काउंसिल। ये ध्यान रखना कि कौन क्या बना रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये हमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल देखने को मिल रही है या जो ऑटोनॉमस काउंसिल हमें देखने को मिल रही है, पावर किस में हाथ में है? It places the governance of the tribal areas in mainland India largely in the hands of the governor। और गवर्नर किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रॉब्लम बस यही है, स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट विच हैव फ्रेम्ड द रूल्स रिगार्डिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फंक्शन। प्रॉब्लम क्या है कि जो गवर्नर है वो इनकी पावर को यहां पर हड़पने की बात कर रहा है, राइट, बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन द पावर। गवर्नर रिपोर्ट जो है इट इज नॉट कवरिंग इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रिहैबिलिटेशन। प्रॉब्लम बस इसी चीज की आती है कि जब स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को रूल उसकी फंक्शनिंग बता रही है, तो गवर्नर के हाथ में क्यों पावर है? लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एज वेल एज एग्जीक्यूटिव है। What is the major difference between fifth and the sixth schedule of Indian Constitution? Fifth schedule designates schedule areas in large part of India in which the interest of the scheduled tribes are to be protected. कौन इनको डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। Scheduled area has more than 50% tribal population. It means not all people who are in the category of scheduled tribes are living in scheduled areas. 50% people belonging to scheduled tribe category are living in scheduled areas. Sixth schedule is related to population of AMTM. इसको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद करना है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, AMTM करके याद कर सकते हो, क्योंकि सिक्स जो है वो चार ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर जो है बना हुआ है। ये J नहीं है, T है। ये ध्यान रखना कि ये चारों की चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। जिन लोगों के पास प्रीलिम्स स्पेशल बैच है, आई गेस उन लोगों को प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी फ्री दी गई है, राइट? कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में? अब प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको कि माइक से जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो गई है, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम लग रही थी। अब सिक्स स्केड्यूल जो है, सिक्स स्केड्यूल टॉक्स अबाउट ऑटोनॉमस काउंसिल्स एंड इट वाज द ब्रिटिशर्स हु ब्रॉट द सिक्स स्केड्यूल बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट आइसोलेशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। यही डिलेमा जो था। देन ब्रिटिश अडॉप्टेड दिस आइसोलेशन, दे रिप्लेस द पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट थ्रू सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Sixth schedule talks about autonomous district councils, regional councils and accords a host of legislative. It means now the tribal groups will make rules for themselves, they will be governing themselves, they will be ruling themselves. Not a person outside of their territory will come into their region and rule them. And this is only done with the help of sixth schedule. और ये इंडियन पॉलिसी नहीं है, ये ब्रिटिश पॉलिसी है।
और उस समय पर 1952 में सबसे ज़्यादा द पर्सन वॉज एल्विन वेरियर. He was the person who wanted that these tribes should remain in isolation. ठीक है. अच्छा, ये भी पूछना था आप लोगों से कि जैसे आप लोग इसमें कमेंट करते हो तो क्या आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट नजर आते हैं? अपार्ट फ्रॉम 6 schedule area there are certain constitutional provision as well, जैसे कि 371A नागालैंड, लद्दाख को लेकर भी है, मणिपुर को भी लेकर है, और 2 तरीके से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है. सबसे पहले 6 शेड्यूल को लेकर और सेकंड यहाँ पर स्टेट एक्ट से. यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर हु हैज दिस पावर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज पार्लियामेंट, हु कैन मेक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है. इन स्टेट्स में ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, राइट. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट है पर मुझे कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं लग रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है. आप असम में देखते होगे दीमा हसाओ, करबी ओंगलोंग, ये सब आपको पता होना चाहिए कि असम में क्या चीज़ है क्या नहीं है. एंटायर स्टेट ऑफ मेघालय एक्सेप्ट शिलोंग इज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल. और ये सारी चीज़ें जो है वो एनआरसी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनआरसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और उसमें एनआरसी इनमें से बहुत सी जगहों पे जो है वो अप्लाई भी नहीं होगा, बिकॉज ये 5th और 6th शेड्यूल में है एरियाज, राइट. तो इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना, एक बार नज़र डाल लेना पेपर देने से पहले. लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जब भी अब मैं आपका टेस्ट बनाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं ऐड करने वाला हूँ जो भी मैंने अपनी क्लासेस में लिए हैं. तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने मेरी क्लास की PDF नहीं डाउनलोड करी है तो डाउनलोड करके उसके रफ नोट्स बना लें. रफ नोट्स बना लें एक ही बार, और उसके बाद हर हफ्ते उसको यहाँ पर आपको रीड करना है, क्योंकि आई गेस जतिन सर इज टेकिंग करंट अफेयर क्लासेस. तो हमने जो है वो जो मैंने नोट्स आपके दिए हैं वो कहीं ना कहीं पर करंट अफेयर से भी मैच हो रहे हैं, राइट. तो इट विल बी बेटर फॉर यू अगर आप उनको पूरी क्लास की PPT को जो है रफ नोट बना लें. वो मेरे ख्याल से 10 पन्नों में या 15 पेज में जो है वो आपके नोट्स बन जाएंगे और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2019 के प्रीलिम्स 18 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था. आप सब लोगों को ये भी पता है कि अगर अभी हम अगले लेसन में फॉरेस्ट राइट एक्ट भी पढ़ेंगे. फॉरेस्ट राइट एक्ट के अकॉर्डिंग 2005 में एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ बस. फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको यहाँ पर रिहैबिलिटेशन राइट दिया जाता है, राइट. रिहैबिलिटेशन राइट, इसका मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर की कोई भी जैसे मेंबर है और वो जंगल में रह रहा है, ही इज लिविंग इन फॉरेस्ट, और अगर वो पिछले 150 साल से उसकी फैमिली यहाँ पर उस फॉरेस्ट में रह रही है, देन दिस पर्सन विल बी अवॉर्डेड 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट इटसेल्फ. इस फॉरेस्ट हेक्टेयर, जो ये 4 हेक्टेयर का लैंड है, इसको कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज ग्राम सभा. ये बस मैं आपको बताना चाहता हूँ. बाकी मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा, यू डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है. अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबके सब, चाहे किसी ने आंसर करा है या नहीं करा है, तब भी आपको ये सॉल्व करना ही है. और हर बार क्वेश्चन पढ़ने से पहले 1 मिनट जो है वो सोचकर जवाब दिया करो, सीधा रेस में मत लगो.
इसका आंसर क्या है आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, कुसुम बोल रही है बी है, अभिषेक बोल रहे हैं कि बी है, और सुशील बोल रहे हैं यहाँ पर ए है। बाकी शैलजा ने कुछ नहीं बोला है अभी तक, अवनी ने भी कुछ नहीं बोला है, जगत राम ने भी कुछ नहीं बोला है, सिद्धू ने भी कुछ नहीं बोला है, विनोद ने भी कुछ नहीं बोला है। बाकी सब लोग कहाँ बोर हो गए हैं क्लास से, या मन नहीं है आंसर देने का? सी, आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर सजेशन हेयर, बिफोर प्रीलिम्स I would like to tell you that try to answer and attempt as many as questions you could, because in prelims you won't be able to attempt 100 questions. In prelims you have to attempt only 75 to 80 questions, and out of which the probability is that if you are a good student and you have read well, then you will be able to solve only 60 to 65 correct. सो अभी ही जो है वो आपके पास टाइम है कि हर चीज़ के साथ आप अपना यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो कि किस तरीके से जो है वो आपको अपने सवालों का जवाब देना है, कैसे जो है वो एलिमिनेट करना है, राइट? जितना मौका मिले आंसर करो चीज़ों को, क्योंकि प्रीलिम्स में मौका नहीं मिलेगा, वहाँ पर वक्त जो है वो भागता है। आंसर इसका ए है। मैंने आपको अभी बताया था कि इट इज़ द ग्राम सभा, इट इज़ द ग्राम सभा विच गिव्स देम द रिहैबिलिटेशन एज वेल एज हैबिटेट राइट। तो खाली फॉरेस्ट राइट एक्ट सिर्फ रिहैबिलिटेशन नहीं देता है, वो 4 तरीके के राइट्स देता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट फॉर पीवीटीजीज। मुझे बस यही आंसर पता था कि ये नहीं करता, ग्राम सभा करती है। तीनों स्टेटमेंट में 3 है और आपका आंसर आपके सामने है। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, राइट? तो खाली शैलजा ने यहां पर आंसर सही करा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में हर बच्चे को हर स्टेटमेंट नहीं पता होती, एलिमिनेशन करना है यहाँ पर। ये मत समझ लो कि आईएएस बनना है तो चाणक्य से भी ज़्यादा होशियार बनना होगा, नहीं, चाणक्य जितना तेज बनना है, राइट? चाणक्य को जब धनानंद को हराना था तो उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था, राइट? तो चाणक्य नेवर वांटेड टू बी अ किंग। चाणक्य बिकॉज ही वाज ऑलरेडी अ किंग मेकर, एंड अ किंग मेकर इज ऑलवेज अबव द किंग। ध्यान रखा करो चीज़ों का, इसलिए बोला, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी बताई थी, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फिलहाल कोई बात नहीं, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, हम अगली क्लास में फॉरेस्ट राइट एक्ट को ढंग से पढ़ेंगे। अब इसका आंसर दो, ये 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, राइट? फिर से पढ़ो, ढंग से पढ़ो और आंसर दो।
अब देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊंगा, मुझे पता है अभिषेक इसमें आंसर मार्क्ड है। मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि हमारी कंट्री में 705 जो हैं वो ट्राइब्स हैं। कंट्री में 705 ट्राइब हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इनमें से सिर्फ 75 जो है वो पीवीटीजीज हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पता है आपको, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पता है। A stagnant or a declining population is one of the criteria of determining PBTG status. नेगेटिव ग्रोथ और स्टैगनेंट यही लिखा हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूं अभी कहाँ लिखा हुआ है ये। जीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि डिक्रीजिंग और स्टैगनेंट, ऐसे ही समझना है आपको कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो अब हमारे आई गेस यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ कि मेरी क्लासेस में आपके लिए क्या क्या बचा हुआ है। आप जिन्होंने भी, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, एक आपको पावर्टी वाला जो है वो चैप्टर जरूर पढ़ना है। दिस वॉज क्लास 3। इसमें जो वीडियो है वो रुकेगा, वीडियो जो है मेरा बोलते हुए रुक जाएगा, लेकिन आवाज़ जो है वो कंसिस्टेंटली आ रही है। तो डिस्टर्ब मत होना, हो सके तो क्या करना है कि ब्राइटनेस कम कर लेना मोबाइल फ़ोन की है, जिससे कि इरिटेशन ना हो कि बार बार स्क्रीन रुक रही है लेकिन आवाज़ कंसिस्टेंटली आ रही है। 2-4 स्टूडेंट उस समय पर मुझे टेलीफोन से भी मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे कि जो वीडियो है वो ऑफलाइन हो रही है, बट खैर वो बात नहीं है। ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। जो मेरे चैप्टर, जो हमारा लेसन 4 है, उसको अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल ओबीसी को लेकर, पर क्लास 1, 3, 4 और 5 ये इम्पॉर्टेंट है। आज 5th क्लास है हमारी, और 6th और 7th और इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर बाकी और चीज़ों के बारे में, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, मैं आपसे बात करूंगा मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा डिटेल्ड मैनर में। उसके बाद हमारा सोशल इश्यूज़ का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं लूँगा 5 क्लासेस आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको यहाँ पर अपना टेलीग्राम ग्रुप दे देता हूँ, अगर ज्वाइन करना है तो कर लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये ग्रुप इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑन जतिन वर्माज IAS चैनल। जतिन सर डज डेली न्यूज़ एनालिसिस, आई एम डूइंग डेली एडिटोरियल एनालिसिस। ये है, ये ईमेल आईडी है अगर आपको मेरे से पूछना है कुछ तो, क्योंकि मैं प्रीलिम्स का डिस्कशन और मेंस का डिस्कशन भी लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोली है और आपको लगता है कि आप सही हो, तो मुझे सही भी कर सकते हो। यहाँ पर ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल, बिकॉज आई एम पोस्टिंग लेसन। जैसे मैंने कल भी जो है वो यूट्यूब पे क्लास ली थी विद रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। सो सिंस अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, देन मैं क्लास जो है फिर ऑफलाइन कर दूंगा। यस
इट्स 536। ठीक है। एंड आप सब लोगों का आज पॉलिटी का टेस्ट कैसा गया है? आज पॉलिटी का टेस्ट है ना आपका? ठीक है, अगर पॉलिटी का टेस्ट नहीं दिया है तो पॉलिटी का टेस्ट दो फिर आप लोग। और अगले हफ्ते सैटरडे या संडे को हम पॉलिटी का टेस्ट का जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में, तो आई विल बी डिस्कसिंग अराउंड 90 to 95 क्वेश्चंस इन डिटेल्ड मैनर। जितने भी डाउट्स हैं सब इकट्ठे करके लेकर आना, हम उसी दिन जो है वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट नहीं है तो आई एम क्लोजिंग द स्ट्रीम।